इतनी जल्दी तो मैंने अपनी शादी के लिए भी हाँ नहीं किया। सर आपको बाबा भी बनना चाहिए एट सम दिन मैं हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बाबा, यू हैव नो क्लू, बहुत सारे लोग ऐसे। If you grew up in India, chances are your first cooking show wasn't on YouTube, it was with him on TV. Our guest today made Ghar Ka Khana exciting, made simple recipes into stories, and made chefs look like film stars. He's the OG of cooking shows, a culinary entrepreneur, a business visionary, and honestly, a man who seems to have cracked the recipe for never aging. Welcome the chef of the nation, Chef Sanjeev Kapoor. Thank you very much, Saurabh. Thank you. I didn't know that you could host like this. Very good. Congratulations. Thank you. Yeah. But मेरे को ऐसे होस्ट करने से आपको लाने तक का सफर जो है पिछले 8 महीने का रहा है. हाँ. बहुत पीछे पड़ा हूँ मैं आपके. ठीक है. 8 महीने में आ गया हूँ. I can tell you this. तो अभी एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था फूड के ऊपर. हाँ. एंड उसमें मुझे दे वांटेड मी एज चेयरमैन. तो उन्होंने कहा कि सर देखो ये मिस्टर दामोदर मल इतने सालों से कर रहे हैं, तो वी वांट यू. हम 8 साल हो गए हैं सर. तो 8 साल बाद मैं यहाँ किया था. तो दिस इज इतनी जल्दी तो मैंने अपनी शादी के लिए भी हाँ नहीं किया था. But thank you so much. I feel so blessed. Also because I don't think it's ever been that I've reached out to you and you have not given me the guidance, not picked up my phone, or always been there to help me along. I remember the first time we met was when I was running Food Panda still. That is correct. Right? तो मैं आपके पास तब guidance के लिए आता. There were a couple of things that we were working on. But since then, I think I've been so happy. And मैं उदित को भी ये बात बोलता रहता हूँ. I said, I don't know वो ये strength, ये energy कहाँ से लाते हैं, that is always available. So thank you so much for not just today, but I think for the last so many years. I think you have done fabulous work. I always like people, young people who have the energy to do things and जिनको डर नहीं लगता. सारी चीज़ें चलती नहीं हैं. लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं ना सब कुछ चलता है. बट और कई लोग उदास हो जाते हैं. मैं कहता हूँ जो सीखा है वो कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे से. Correct. जो सीखा है. और कई चीज़ें कॉन्क्रेंटली चलती हैं. तो लोग मुझे कहते हैं आजकल नया क्या है. मैंने कहा पुराने से फुर्सत नहीं है, नए का क्या बताऊँ मैं. राइट. सो पर वो प्रिंट एवेन्यू क्या था? प्रिंट वेन्यू. हाँ. तो प्रिंट वेन्यू था, फिर ऑफ कोर्स फूड पांडा था. फूड पांडा तो and I've been running Meadow for a bit now. Yes. And with now Uncover. Very nice. So, wish you all the best. Thank you so much. पर here is what you have done in the last 8 months जब से मैंने आपका पीछा करना शुरू किया. And I have that list because मेरे को याद नहीं हो रहा था ये सब. You've been named the top agri-food pioneer of 2025. You've launched a new packaged food brand called Earth. You've launched a new band, of course I saw you play, and a brand which you're coming up with Baman Irani. आपने अपने शो को रिप्राइज किया है, which is स्वाद अनुसार, and you've shot with Baman, with Sania Malhotra, Farah Khan, Mona Singh. सर इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी. तो छोटा सा शो है हमारा. हाँ. बट फिर भी रिस्क क्यों लेना? क्योंकि ऐसा नहीं कोई कहते कि सौरभ की सर क्या है ये आप, मतलब मेरे शो में ऐसी आ गए. इसलिए मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए. सॉरी. नहीं डोंट वरी. मैं कैश में वापस देता हूँ. डोंट वरी. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता. नहीं बट यू नो ऐसा ना कपिल शर्मा के शो में पहली बार गया तो उन्होंने ऐसा किया. मैंने कहा अब मुझे लाइसेंस मिल गया. अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. We wanted you there. ठीक है तो नहीं बट I'll also talk about things that you have been doing, right? And it's not one thing. It's been so many different hats that you've donned. Starting as a chef, I think you showed India what a celebrity chef looks like with Khana Khazana. Then you've run restaurants, Wonder Chef,
what we call D2C brands, right? Wonder Chef alone is now what 500 plus crores in top line. टर्नओवर तो इससे ज़्यादा ही होगी अभी. Turnover ज़्यादा हो गया, almost 600 crore, right? So yeah, I think how's that journey been? If you go back and look at yourself at 20 years, does the 20-year-old Sanjeev Kapoor manifest this? What was that thinking like? How has this journey been like? And did you ever feel कि खाना आपको यहाँ तक पहुँचा पाएगा? Because मूल तो वही है at the end of the day. बिल्कुल. एक्चुअली ये जो सवाल है, मैंने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं अपने आप से. आई हैव नेवर आस्क्ड कि वेयर वुड आई बी, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक हैज़ हेल्प्ड मी, बिकॉज आई ट्रीट द डे टुडे एज द फर्स्ट डे. कि आज पहला दिन है, आप शुरुआत कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे. यू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट, एंड दैट इज द डिसिप्लिन I have been able to maintain forever. It's not something that I'll take anything for granted. कि अच्छा आज हम अनकवर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे बात करनी है, तो मैं पूरे दिल के साथ में विथ फुल एनर्जी आऊँगा. एंड अगर आपको जो भी टाइम दिया है उससे पहले मैं कोशिश करूँगा पहुँचने की. सो आई बिलीव कि अगर आप सारी चीज़ें ठीक करते आ रहे हैं तो, और ये मैं इसलिए स्माइल करता हूँ कि आपको लगता है, मैंने कहा अभी आपको क्या पता मैं क्या करूँगा. आज से 20 साल बाद वाला तो आपको पता नहीं है. I know. Right? I am getting prepared for that every day. Right? So it's very gratifying when you look back and you say कि अच्छा ये ऐसे ऐसे. अभी मतलब कल परसों किसी से बात हो रही थी, किसी ने कहा कि आज ये अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी आ रहे हैं, तो उनके लिए, तो मैं मिलेट्स की कुछ बात कर रहा था. हाँ सर, मिलेट्स. मैंने कहा मैंने मिलेट्स की बात तब शुरू की थी 2016, जब किसी को मिलेट्स का पता नहीं था, और गुस्से में की थी मैंने कि गूगल किया मिलेट्स की हिंदी, तो उसमें आ गया चारा. मैंने कहा ये तो गूगल नहीं कर सकता हमारे साथ में. सो वी हैव टू चेंज दिस. एंड तो मैंने 2016 में ही वर्ल्ड फूड इंडिया की बात होनी शुरू हुई. बिग मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने मुझे बुलाया, तो तब मैंने पहली बार कहा, मैंने कहा यहाँ पे एक ना बड़ा सा धमाका करेंगे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, एक खिचड़ी बनाएंगे मिलेट्स की. तो ये क्या होता है? मैंने कहा सब कुछ मिलेट्स के साथ में करेंगे. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट्स की बात करी, ईयर ऑफ मिलेट्स किया. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही टुक ओनरशिप ऑफ दैट. देन G20 के अंदर सब कुछ मिलेट्स, एंड टुडे इट्स मेन स्ट्रीम. टुडे यू नो हैव टू टेल कि क्या है. अब आपको मुझे लोग बता रहे होते हैं मिलेट के बारे में क्या है. आई नो वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स इज एक्चुअली मेघना. मिलेट्स का उन्होंने किड्स फूड का पूरा ब्रांड शुरू किया हुआ. ह्यूज शाउट आउट टू हर. आई नो. यू नो हर? या ऑफ कोर्स. ओह वंडरफुल. खाने में ऑफ कोर्स. सॉरी, आई शुड हैव प्रिज्यूम्ड. तो नेचुरली तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी कुछ करते हैं तो उम्मीद तो ही करते हैं कि अच्छा ही होगा. राइट? इट्स नॉट दैट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज स्मॉल. और एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, मेरा भाई स्ट्रेटजी कंसल्टेंट है, वो हमेशा मुझे बोलता है कि डू वन थिंग एंड यू कैन मेक इट सो बिग. आई सेड आई नो इट, बट माई एक्साइटमेंट इज टू डू many things because that makes me happy. तो मैं तो अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ. मुझे मज़ा आना चाहिए. तो अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो नहीं करूँगा. तो बड़ा करने में क्या हो जाएगा? ज़ीरो ही ऐड होंगे. इतने ज़ीरो पहले से हो गए हैं कि मुझे वो एक्साइटमेंट ही नहीं है कि कितने होंगे उसकी, क्योंकि नीड नहीं बहुत बड़ी की. नीड्स उतनी हैं, बच्चे बिगड़े नहीं हैं, घर है, गाड़ी है, ऑफिस, और क्या चाहिए, और माँ भी है. वेरी नाइस.
and वो रोज दिखता भी रहता है. You've just started this luggage brand, right? Of all things, luggage brand is something I would have never thought कि आप शुरू कर रहे हो. हाँ नहीं, हमने भी नहीं सोचा. हमने भी नहीं सोचा था. तो we have on licensing arm. तो हमारी जो लाइसेंसेज हैं वो अलग अलग लाइसेंसेज हैं. मतलब ग्लास फेयर में है सर. तो हमारा उसका ब्रांड है संजीव कपूर. और अच्छा चलता है. अच्छी प्लेसमेंट, मतलब D2C भी है, मेन स्ट्रीम मॉडर्न ट्रेड में भी है, प्लस जनरल ट्रेड के अंदर भी है. तो उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हमारे कुकवेयर तो ऑफ कोर्स वो तो कंपनी है, बट लाइसेंसिंग के अंदर हमारे जैसे स्टील वेयर, माइक्रोवेवेबल स्टील वेयर है. तो बोल्स हैं जिसमें आप स्टील के अंदर आप माइक्रोवेव में गर्म कर लो. सो इट वाज इंडिया फर्स्ट. वंडरफुल, परफेक्ट लंच थिंग. हाँ बिल्कुल एकदम. तो वो हमारे हैं. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं रिलेटेड टू मतलब या तो किचन की चीज़ें या फिर डाइनिंग टेबल की चीज़ें, या मतलब कुछ ऐसे भी रहे हैं होम की चीज़ें, जैसे बेड कवर्स, ऐसी वैसी चीज़ें विद संजीव कपूर ब्रांड. तो जब ये हमारे पास है, मैंने कहा ये कैसे होगा. तो हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड थी. मुझे तुम लोग को सीरियसली लगता है? मैंने कहा अच्छा. तो हमने पहले, बिकॉज जो हमारे लाइसेंसी हैं कि क्या करते हैं, क्या है उनका, कि अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, सब कुछ करते हैं. क्वालिटी हमने देखी, डिज़ाइन देखे, ये तो चीज़ ठीक लगे. तो मैंने ट्राई करते हैं. शुरू में ऐसा होता है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला राउंड करते हैं जैसे हम. तो मैंने कहा ये सबको ना पहले गिफ्ट करके देख लेंगे हम कि कैसा होगा. और तो जैसे ही हमने लॉन्च किया, हम किसी और चीज़ की शूट कर रहे थे. तो हमारा जो लाइसेंसिंग हेड है, ही इसकी सर एक वो ना उसके लिए भी कुछ शूट करते हैं. अरे मैंने कहा अभी बिजनेस पता नहीं तुम्हारा साइड क्या करना है, उसके लिए करना है. मैंने कहा चलो ठीक है. तो हमने आधे घंटे के अंदर एक रील शूट की, अपने ऑफिस के अंदर ही की. दैट बिकेम वायरल. वाओ. एंड उसके बाद में मतलब हमने फेस्टिव सीजन में हमने कहा अपने जान पहचान को हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसे ज़्यादातर ना वंडर शेफ की चीज़ें देते हैं. तो हमने कहा कि इस बार ये देते हैं. वो तो हमने अपनी लिस्ट बनाई, दी. अच्छा कुछ तो आ गए हमारे पास. और फिर उसके बाद हम हमारे ऑफिस के सर वो आ नहीं रहे हैं, फैक्ट्री से आ नहीं रहे, मतलब का क्या है. तो उनसे बात की. कहते हैं सर हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसी डिमांड होगी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें बाद में दे देना, पर तो पहले. सो इट्स बीन ग्रेट रिस्पॉन्स. अर्ली डेज, बट द रिस्पॉन्स हैज़ बीन मच बेटर देन व्हाट एनीवन एक्सपेक्टेड. मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट, ताज होटल, इंडियन होटल्स के CEO MD हैं पुनीत. तो उनको भेजा. अब उसमें ब्रांडिंग है संजीव कपूर. तो कहते हैं जब संजीव कपूर को घसीटते हुए ले जाना पड़ेगा. मैं कहती घसीटते नहीं, सिर पे उठा के लेके जाओ. ऐसी चीज आती है कभी कि आपको लगता है आप भी सरप्राइज हो गए कि यार अच्छा इसमें भी मेरा नाम लिखा है? हाँ नहीं, कई बार तो हो जाता है ऐसा. देन यू स्माइल कि अच्छा ठीक है. अच्छा कई बार ऐसे भी होता है कि आपका कोई लेना देना ही नहीं है उस जगह से. और कहीं ऐसे रेस्टोरेंट आप गए, सड़क पे, आप हाईवे पे, आपने देखा ओहो ये तो आपकी फ़ोटो लगी हुई थी, आपका कोई लेना देना नहीं था वहाँ से. या किसी ने आपको फ़ोटो भेज दी कि हम मोम्बासा में थे, आपके रेस्टोरेंट में गए. नहीं, हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है मोम्बासा के अंदर. तो कहते हैं आपकी बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी. मैंने कहा अभी फ़ोटो तो मेरी कहीं पे भी लग सकती है. फिर ज़्यादा बचपन में ना हम बाल कटवाने जाते थे नाइयों के पास में, तो वहाँ पे अलग अलग फ़ोटो लगी हुआ करती थी. कभी अमिताभ बच्चन की, कभी अभी सबके. तो मैंने वो कौन से उनके होते हैं. तो मैं कैसे हमारी भी फ़ोटो लगती हैं. ठीक नहीं, दैट्स अ ग्रेट वन. यू नो बट आई सॉ आपके जो लास्ट दो कपल ऑफ एपिसोड्स आए थे, वन ऑफ द थिंग्स दैट इट ब्रॉट बैक फॉर मी was those खाना खजाना days, right? क्योंकि वो that has been at least मैंने पहली बार आपको वहीं पे देखा था कि मम्मा बैठ के वो रेसिपीज लिख रही है. और so we collected a few things that we could dig out from mom with his mom and collected. Love to show you that कि कैसे आपका मतलब रेज है.
आपको पता होगा वैसे ना कि you've been the universal crush for donkey's years now, right? So, डोंट आस्क, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। वाह। no, but please do tell. नो पता नहीं हमारे जो डायरेक्टर जिन्होंने शो बनाया था हंसल मेहता, इज अ बिग फिल्म मेकर, हाँ, तो वो हमेशा कहते कि कितने लोगों ने कॉपी पे सब वो बनाई होंगी, कितनी डायरी होंगी, कहते हैं वी शुड कलेक्ट ऑल दोज, एंड कहते हैं वो ऐसे करते ना मिलियन तो ऐसे इकट्ठी हो जाएंगे। मैं कहा आई एम श्योर हो जाएंगी, बट No, I am sure, and I'll make it 1,000,001. Wow. I'll start with the diary itself. ये देखिए आप। ये देखो यही कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ कि ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज प्राइसलेस। ये देखो इसमें ना खाना खजाना का एड्रेस, खाना खजाना लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा कि हुआ वो है। आपके देखो पोस्ट बॉक्स 658 में आएंगे। अमेजिंग। ये देखिए, ये ना मैं इसको ना वो लेता हूँ, देखो इसका एक कि ये कैसे, ये देखो, ओह माय गॉड, ये देखो ये सब कटिंग सेव्ड है। ये बताओ ये कौन है इंसान। अमेजिंग। दिस इज ये देखो भैया आजकल के ज़माने में दिस इज़ प्योर गोल्ड। लाइक माई डॉटर वुड सी, अरे ये तो कितना वो है, देख ये मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से सन की है। 1999। यस, वाह, 26 नवंबर 1999। वाह, we'll love for you to autograph some of this. वाह। That's your recipe book? हाँ, ये देखो ये जो है, अब ये रेसिपी बुक्स ना ये बहुत कम लोगों को पता है, बट लोग बोलते हैं ना बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट सेलिंग ये, तो हम लोग ने कभी ये बताया नहीं कि हम कितनी बुक्स बेचते थे। मतलब देयर वाज अ टाइम जब अब एक महीने के अंदर वी यूज्ड टू सेल मोर देन 1 मिलियन कॉपीज। वाओ। मतलब जब लोग ऐसे बोलते थे ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, मतलब पब्लिशर एंड हम लोग सिर्फ स्माइल करते थे, हम किसी को नहीं बोलते थे। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन ढाका, और एक मैं ऐसे शॉप में गया तो वहाँ पे कुछ ऐसी सीडी पड़ी हुई थी, और हमारी नहीं थी, मैं पायरेटेड ऐसी थी। तो उसने देखा नहीं कि मैं कौन हूँ, उसे पता नहीं था। मैंने कहा ये कैसी बिकती हैं? तो कहते देखो कितनी पड़ी हुई हैं। हाँ, काफ़ी सारी हैं। इसे सबसे ज़्यादा हम कुरान बेचते हैं, उसके बाद ये बेचते हैं। एंड दैट वाज एन आई ओपनर कि मतलब इतना ज़्यादा जो है। तो ये बुक्स का तो मुझे पता है कि हमने कितनी छापी हैं और कितनी बेची हैं। तो ये एक्चुअली छोटी बुक्स की भी एक कहानी है। ये कितने की 59 की थी, ये क्या 59 ये तो सब याद है मुझे। सो ये हम हमारे राष्ट्रपति जी थे उस समय, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको मिलने के लिए वाइल ही वाज द प्रेसिडेंट हम गए मिलने के लिए। तो अपने रूम में एक छोटे से डेस्क पे वो ऐसा बैठे हुए, और हम सामने 2 चेयर पे पब्लिशर एंड आए, हम बैठे हैं, और बड़े संजीदा से हम तो चुपचाप जाके बैठ गए हैं। तो हम कह रहे हम जब मुड़ेंगे तो हमारे से बात करेंगे। तो जैसे ही मुड़े स्माइल किया, तो फिर भी अब वो सोच रहे हैं। तो मैं कहा सर यू लुक सैड, सन डू यू नो व्हाट इज लाइफ ऑफ सन? ये कोई सवाल हमसे पूछेगा तो हमें पता नहीं है। It's about give or take it's about billion years. Okay. तो इसमें उदास होने की क्या बात है? The problem is half of it is over. मतलब 500 मिलियन तो भी बचे हैं। Right? What will happen after that? तो ये सोच रहे हैं। हमने कहा हो तो किताब की बात हमने अपने, हम तो पब्लिशर के साथ गए थे, तो हमने अपनी एक हमारी बड़ी वाली किताब थी, तो हमने उनको किताब दी, और उन्होंने कहा कि हाउ मच इज़ इट प्राइस्ड? इट्स वेरी रीजनेबल सर, इट इज़ 250 रुपीज़। बड़ी किताब थी हमारी। 250 रुपीज़।
For that money in India, people can kill each other. तब हमने छोटी किताबें निकाली थी. And imagine the president saying that. प्रेसिडेंट सिंह ने, तो हमने जाके हमने कहा नहीं, हमें ना अब ये उन्होंने कह दिया है तो वी हैव टू मेक इट. तो हमने मतलब पहले 49 कुछ देर करी, 49 में बैठ नहीं रहा, तो फिर 59 फॉर ईयर्स वी डिड इट डेडिकेटेड टू हिम. Wow, such a great thing to do. या सो दैट इज, तो इसलिए याद आ गया वो. तो ये इस पे मैं साइन और ये आज की डेट डालते हैं हम. ये लो जी. Thank you so much. Speaking of books, 150. वो ज़्यादा ही होंगी, ये तो पुराने कुछ चल रहा है. मैंने तो पढ़ी नहीं है इतनी जिंदगी में, आपने लिख कैसे ली? That's actually recipe books. Yeah. It's not that. So it's a collection of recipes. But still sir, मतलब एक बुक में कम से कम 50 रेसिपी. So हाँ, नहीं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जिसमें दूसरी वाली भी यूज़ हो जाती हैं, वो भी होती है. But that's not. मतलब ऐसे हमारे I think on our website, our YouTube channel संजीवपुर खजाना, I think we would have maybe 15-20,000 recipes. Wow. वो तो हमारी जिंदगी है ना. और अब ये कहें कि आपकी सांसें कितनी हैं. Correct. That's our life. That's who we are. How did it start? Like, you know, आपने बोला कि every day is the first day. Yes, it is. How did that first day look like when this all kind of began and you said कि food is where you're going to? So actually, बहुत सारी चीज़ें हैं. But if I was to say, let's say professionally. So first day, it was in this city college. ख़त्म किया, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किए. ट्रेनिंग सेंटर में हमें लेके गए, तो उसी होटल में, कुतुब होटल के अंदर था. कुतुब होटल के अंदर उन्होंने किचन में हमारा इंडक्शन ऐसे घुमाने के लिए लेके गए. तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ का रूम, एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो बैठे हुए हैं, तो हम 6 लोग थे बैच में. उनसे मिलाया गया. वी मेट हिम एंड वी वर इंट्रोड्यूस्ड. एंड एज आई वाज to leave his office, I said, can I ask you one question? He said, yeah, go ahead. How old are you, sir? So he said, I'm 40. I said, thank you, sir. Khatam ho gayi kaani. He said, no, why did you ask this question? I said, I just wanted to know that you're executive chef, how long it takes to become executive chef. So he says, okay, now that you asked, let me also tell you, I'm probably the one of the youngest in our company. तो counterproductive हो गया. हाँ, तो मैंने कहा okay जी, ठीक है. तो मैंने कहा that means you have taken about 20 years to be here. I said yes, इतना टाइम लग जाता है. And इससे ज़्यादा भी लगता है, बट मैं 20 साल में बन गया. बहुत ठीक, थैंक यू सर. तो नहीं पूछ लिया, तो मतलब अब क्या. मैं कहा नहीं सर, आई जस्ट वांटेड टू नो सो दैट मुझे पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं. तो कहते अच्छा पता चल गया, आप क्या करोगे. अच्छा, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसे सामने सवाल जवाब हो जाएगा. तो मैंने कहा सर, अगर आपने 20 साल लिए हैं तो मैं 10 साल में कोशिश करूँगा. लाफ्ट. इसे मैंने बोला कि वन ऑफ द यंगेस्ट, आप करो 10 साल में कर लोगे, कैसे कर लोगे. मैंने कहा सर, बड़ा सिंपल, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स बड़ी अच्छी है मेरी. तो सब लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 कर लूँगा. तो 20 के 10 अपने आप हो जाए, इसमें कोई वो तो है नहीं. तो ही लाफ्ड, एवरीवन लाफ्ड. ठीक है, बट आई न्यू कि ये तो पॉसिबल है. इट्स नॉट समथिंग, इफ यू ब्रेक इट डाउन, इट्स गोल इज जस्ट जर्नी. आपको पता होनी चाहिए क्या है. इट्स नॉट मैथमेटिक्स है. तो वो 10 साल का टारगेट रखा. रूल्स भी चेंज हो गए उसमें थोड़े से. वहाँ तक 8 साल में पहुँच गया, जहाँ पे तो वहाँ से ऐसे करते करते अब 8 साल में पहुँच गया. 28 साल में आप उसी साल में मुझे बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ दिस कंट्री का अवार्ड मिल गया. तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया. मैंने कहा ये क्या हो गया, अब क्या करूँ. मतलब आप सारी जिंदगी यही करोगे. अब तो यू हैव रीच्ड योर प्रोफेशनल पीक. सो दैट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. कि आप मतलब ऐसे ही यही करते रहोगे अब तो. So you do realize most of the world will be happy to be there. नहीं, I can't be happy. मतलब वो मुझे बड़ा बोरिंग सी हो जाएगी.
बहुत बोरिंग. आई एम नॉट वायर्ड लाइक दैट. आई एम नॉट वायर्ड लाइक दैट. I have to find new things. I'm an explorer. Right. I'm a curious person. So for me, I have to continuously discover things, find things, learn things. नई नई चीज़ें. मतलब अगर आज AI की बात हो रही है तो इससे 8 साल पहले हमने, तब जिसको AI नहीं बोलते थे, हमने अपनी कंपनी लॉन्च की थी ऑन फूड, जिसको आप कलनरी AI बोल सकते हो. सो वी डिड, मतलब उस समय तो NLP मशीन लर्निंग वगैरह ये सब चलती थी. एंड वी स्टार्टेड पावरिंग एलेक्सा के जो पूरे, अभी भी दुनिया में अगर आप पूछेंगे एलेक्सा से कि इसकी रेसिपी बताइए, चांसेस आर इट्स पावर्ड बाय अस. एंड दिस इज समथिंग वी स्टार्टेड 8-9 years ago. तो मुझे वो मज़ा आता है जो किसी ने नहीं किया. तो मतलब अभी भी कि कौन से वाले में AI में, किस सेक्टर में, कौन से में, नहीं ये ना परप्लेक्सली प्रो से पूछेंगे, ग्रॉक 5 में बताएगा ये इसमें अच्छा नहीं, कोपायलट लिमिटेशन उसकी है, जेमिनी में ये होगा. तो हमारे ऑफिस वाले कहते हैं कि शेफ आपको कहाँ टाइम मिलता है, ये करते कब हो. बट एक्चुअली कोई टाइम थोड़ी लगता है इफ़ यू आर एंजॉइंग. अब वो जिंदगी आपने वो कि आप वो रील्स ऐसे कर रहे हो या क्या कर रहे हो, इट इज़ अ चॉइस दैट यू मेक. इट्स अ चॉइस दैट यू मेक. करेक्ट. तो मुझे तो मज़े आता. एंड दिस एग्जीक्यूटिव शेफ वाज बिफोर और आफ्टर खाना खजाना? बिफोर. तो तब वहाँ पे खाना खजाना का मौका मिला. एंड उसी समय बिकॉज मुझे ये हो गया था कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ होगी, तो मुझे एक लगता था कि माय डैड ऑलवेज फेल्ट कि मैंने अपने कैलिबर के हिसाब से पढ़ाई नहीं की थी. होटल मैनेजमेंट तो उनके लिए होता, तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा होता तो. करेक्ट. और ये मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था जी. तो मैंने कहा कुछ MBA वगैरह कर लेते हैं. होटल में जाता था अपना मोटरसाइकिल में घर से, तो एक दिखता था मुझे नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, NMIMS. तो वहाँ पता चला कि कुछ ऐसे आप कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो. तो मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट वो किया. आई वाज द ओल्डेस्ट एट 28 इन दैट क्लास. एंड वो ज्वाइन किया मैंने, मतलब सब एंट्रेंस दिया, ग्रुप डिस्कशन हुई, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया. तो मैं मार्केटिंग भी पढ़ाई कर रहा था उस समय जब ये टीवी का आया. तो आई वाज, एक ही शेफ़ होना था एक एपिसोड के लिए, तो मैनी शेफ्स. तो मैंने कहा कि कुछ तो थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग की भी वो दिमाग लगाओ. तो वो दिमाग लगाया. तो ये समझ आ गया था कि ये जो शो है, चाहे एक ही एपिसोड था, इट वाज नॉट अबाउट व्हाट आई नो. तो बाकी जितने शेफ्स थे उस समय जिनको ये मौका मिला था, ऐसा नहीं था कि मेरे से ही शुरू हुआ था, बहुत सारे शेफ्स थे, दे वर शोइंग ऑफ. उनको क्या आता है. मैंने कहा शो मेरे लिए थोड़ी है, शो कौन देख रहा है. तो कंज्यूमर वाला समझ आ गया था, मार्केटिंग वाला. तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, तो उसके लिए वैसे ही किया. तो द एपिसोड दैट आई डिड took off. So you decided to become a chef, I would say much ahead of time in a way, right? उससे I don't think till you came to the picture, India knew what a chef is. हमें कुक पता थे, हमें रसोइया पता थे, हमें हलवाई पता थे, पर हमें शेफ आपसे पता लगा. True. Right? How was that, feeling? Because it was pretty much breaking new ground. True. At least at that time, because I always say, जब मैंने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू करी थी तो लोगों के रिश्ते नहीं होते थे क्योंकि वो स्टार्टअप कर रहे हैं. ठीक है, तो आज उल्टा हो गया. रिस्पेक्ट की बात. करेक्ट. तो लेकिन तब इज्जत नहीं हुआ करती थी, राइट? सो you've broken that ground, and I want to say all on your own. So I would say that it wasn't easy. It wasn't easy initially, because when I started, people didn't know who a chef was. Chef is a profession in hotels was there. It only existed. Correct. Not in restaurants, not at other places. So it was only in hotels. So hotels में the contemporaries or my seniors that I had, they never thought anything of me. That is heartbreaking. It is, right? It is, because आप तो sincerity से काम कर रहे हो.
right? You are doing something different because that's what excites you. You want to say ki if I have reached in some sense peak, then you want to do something else, but in a related field. How would you do it unless you try it? But if you are sitting there, you are sitting pretty, but you will not fail. Yeah. But that's not who I am. Excitement. Yeah, the excitement. How do you learn more? Right. So that's for almost 10-15 years in the industry, I was out of it. I didn't tell anyone what I was doing. So सबको बहुत टाइम तक ऐसे लगता था पता नहीं क्या करता है बेचारा, नौकरी भी नहीं है इसके पास. तो आई स्टिल रिमेंबर वन वेरी सीनियर शेफ्स. हमने जब अपना ऑफिस में कुछ शेफ्स वेफ्स हायर कर लिए, काफ़ी टीम अच्छी खासी हो गई थी. तो मुझे लगता था कि हमारे पास जो हम शेफ्स हायर करते हैं ना इंडस्ट्री से, बिकॉज शेफ्स कहाँ से आप करोगे, तो उनको मतलब हायर करने में दिक्कत होती थी. बिकॉज they used to feel out of place कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कहीं उन्होंने ना सीखी है ना कर रही हैं, बट हम करते थे. वो पहले जब हायर करते हैं ना वो समझाने में दिक्कत होती थी. तो कनेक्शन इंडस्ट्री से भी तोड़ा हुआ था. अनलर्निंग ज़्यादा मुश्किल होती है ना. हाँ. तो पर मैंने कहा कि इतना थोड़ा सा इंडस्ट्री से, तो मैंने एक शेफ़, वेरी सीनियर शेफ़ फ्रॉम ताज ग्रुप, तो मैंने उनको इनवाइट किया. मैंने कहा एक हम सीरीज़ शुरू करते हैं जहाँ पे हर महीने एक शेफ़ को बुलाएंगे, दे विल टॉक टू आवर टीम एंड उनको लंच भी खिलाएंगे. और तो हमने अपने ऑफिस में मुंबई में ही किया. और वो जब शेफ़ बाहर से जब तक मेरे रूम तक पहुँचे, तो मतलब आई कुड सी कि अच्छा हमारा ऑफिस 18 फुट हाइट है, हमारी 10,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है, 70-80 लोग बैठे हुए हैं जो नज़र आने, जो बाकी नज़र तो आ नहीं रहे हैं. करेक्ट. तो मतलब इट्स योर ऑफिस. मैं कहा यस सर. अच्छा ये लोग करते क्या है? मैं कहा छोड़ो ना सर, क्या करते हैं. अच्छा नहीं, यू सेड कि आके बात करनी है. अच्छा भाई जब सब आके बात होगी तो आई कुड सी कि हाँ मतलब ये कि ये क्या. वो फिर मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए. फिर धीरे धीरे लोगों को जब आप कहीं गए और वहाँ पे कभी आप मैंने ऐसे किसी इवेंट में हाँ कर दिया जिसमें और शेफ्स भी हैं, फिर जो इम्पैक्ट कि ओहो ये क्या हो गया. फिर गलती से कोई एक आध गाड़ी देख लेते हैं, फिर तो ओहो. तो काफ़ी साल तक तो मैंने बताया नहीं था मैं करता क्या हूँ. बट नेचुरली नॉट दैट आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. ऐसा नहीं था कि मुझे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई वाज हैविंग फन, आई वाज डिस्कवरिंग एंड चीज़ें अपने आप होती गई. आई केप्ट ऑन टेकिंग chances. I was willing to fail. Yeah. Because people, लोगों को डर लगता है फेलियर से. But what people say that it is failure, actually that's learning. Simple एक वो मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स को अगर वो एक टर्न भी करता है ना, नहीं हो पाता है तो फेल हो गया, ओहो बैठ नहीं सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, साइकिल में गिरेगा. All that is learning. अगर उस बच्चे को हमेशा ये बोलो फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, माइंडसेट बन जाएगा ना. How would that happen? So मुझे लर्निंग में मजा आता है. बट आई एम श्योर दैट जर्नी इज नॉन ट्रिवियल है ना. कि वो सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये यू हैव बीन थ्रू सो मेनी ऑफ दीज अप्स एंड डाउन्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो यू नो today it comes naturally to you to be able to say it. लेकिन उसको फील करना, वहाँ पहुँचना, उसको एक्चुअली उस पॉइंट पे जब आपने किया उसको इंड्योर करना, that is वो it takes everything out of you, right? And especially because you've been through also an entrepreneurship journey. See, एक professional journey is tough, but I would say वो जब किसी को लगता है ना कि मेरे को अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक करके देखना, वो एक बार entrepreneurship करके देख ले. एंटरप्रेन्योरशिप में एक पहली दिन समझ आती है, फ्रॉम डोरमैन टू चेयरमैन सब कुछ. Exactly right. And with especially in an industry like hospitality, restaurants, 40% annual churn है आज भी.
right? So what was that journey? I'm sure there were so many heartbreaks there. I'm sure. तो सी हार्ट ब्रेक को अगर हार्ट ब्रेक जैसे सो आई स्टिल रिमेंबर हमारा जो पहला हमने ऑफिस एक तो चलो घर के रूम से हमने किया राइट, तो तब भी एक मैंने 2 लोग रखे हुए थे और एक पार्ट टाइम, तो एक वो गेस्ट रूम, क्योंकि जब मॉम एंड डैड आते थे मुंबई तो वो गेस्ट रूम में ही सोते थे, तो एक वहाँ पे डेस्क बालकनी में लगा रखी थी, इस पर कंप्यूटर होता था, तो दैट वाज माय ऑफिस। और वहीं पे 2 लोग भी आके काम कर रहे हैं और एक पार्ट टाइम भी वहीं पे काम कर रहे हैं। वो तो चलो हो गया। उसके बाद में जो हमने एक ऑफिस लिया, सो कॉल्ड ऑफिस, ये रूम से भी छोटा था। उसके अंदर एक मतलब मेरा एक डेस्क कैसे लगा हुआ है। अच्छा, ये अब एक 5 स्टार में जिसने सारी जिंदगी काम किया, करेक्ट, और वहां पे आप सोचो कि कोई 5 स्टार वाला आ जाए शेफ, करेक्ट, कि और वो यार देख ले कि ये क्या है, तो तो लगे तो बड़ा गरीब आदमी है, क्या कर रहा है, इसके साथ क्या कितना बुरा हो गया, करेक्ट, राइट। तो बट यू नो कि वो जो 5 स्टार वाला था वो तो किसी और का ही था, करेक्ट, वो आपका नहीं था, करेक्ट, ये जो है ये आपका है। एंड धीरे धीरे देन यू कीप ऑन बिल्डिंग, यू कीप ऑन बिल्डिंग, तो उसमें इंडोरेंस से ज़्यादा आई थिंक आपको ये कि आप क्या क्या जो चीज़ें, जितनी आपने चीज़ें इनएफिशिएंसी सीखी थी, how do you convert that into efficiency? Right? So each thing you keep on making more efficient and you start adds up. Second thing, very early on I realized कि अगर आपको leadership position लेनी है किसी चीज़ में, तो कैसे आप लोगे उसको, आप कैसे करोगे, and that's how I became a chef, कि आप सब लोग जहाँ जा रहे हैं, जिसको भेड़ चाल बोलते हैं, करेक्ट, राइट, तो आप तो भेड़ बन गए, राइट। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप उस रास्ते पे जाओगे जहाँ सब जा रहे हैं, तो आप फॉलो कर रहे हो किसी चीज़ को। अच्छा, फॉलो नहीं करना है आपको, तो क्या करोगे, तो कौन से रास्ते पे जाओगे? ऐसे रास्ते पे जाओगे जो जहाँ रास्ता नहीं था, द रोड लेस ट्रैवल्ड, और रोड इज़ नॉट देयर, राइट। तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ रास्ता नहीं, पता नहीं, लेकिन होराइजन दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो है, चलते हैं, देखते हैं। आप चलते गए तो आपको पता चला कि ओ, ये तो अब रास्ता बन गया है। सो द ओनली वे टू डू इज़ टू लीड, हैव द करेज टू लीड, कि आपको अब आगे खड्डा है, क्या है, बट अगर आप लीडर हो तो आप लीड करोगे, फॉलोअर्स अपने आप आ जाएंगे फिर। And I think what you also said कि and not be afraid to fail, because problem वो failure तो ही नहीं ना, हाँ, वो horizon हर किसी को दिख रहा है, दिख right? So but to take that road, because you can easily go wrong, right? So it's no by again maths का स्टूडेंट, probability तो है ही है, 50% तो है ही है, करेक्ट, कि सिक्का उछलेगा हेड या टेल, करेक्ट, तो 50% तो पहले ही ओके होंगे, The glass half full and the glass half empty. तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे। तो मैं कह रहा हूँ कि 50% चांस ऑफ सक्सेस तो है ही है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा, मतलब अब इससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं ना प्रिडिक्शन करता हूँ बहुत लोगों को, अरे आप तो बिल्कुल ज्योतिषी की तरह। तो तुम्हें ज्योतिषी नहीं हो, मुझे पता है मैं जो बता रहा हूँ उसमें 50% करेक्ट। मैं 20 लोगों को बता रहा हूँ, 10 तो निकलेंगे ही। खत्म है, मतलब आप कैसे, क्या मतलब, सर आपको बाबा भी बनना चाहिए एट सम नहीं, मैं हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए बाबा, यू हैव नो क्लू। नहीं, बट COVID time couldn't be easy, right? Especially like I said, I want to come back to the SK restaurants, because you and I spoke a lot during that time. फिर बीच में कुछ मैंने बॉल ड्रॉप करी, but I think during that time we spoke a lot about it. So I'm sure that was a very difficult phase time. Also given जो structural उसमें issues थे, we've spoken about that, right? So how did you navigate that time, that period, that structure? And how did you do things differently next time? So जब कोविड में आई थिंक शुरू में ही आई थिंक जितनी चीज़ें, सब कुछ रुक गया था, सब कुछ था, there was no इनकम कहीं थी नहीं, राइट, there were costs, and उसी समय हमारे ऊपर किन्हीं कारणोंवश बहुत बड़ा डेट
भी हमें लेना पड़ गया था। एंड तो मुझे याद है कि मैंने हमारे वंडर शेफ, हमारे को फाउंडर मेरे साथ में जो रवि, तो ही कॉल्ड डिसेस कि सर अगर यही हाल रहा, अगर जो ये है, अगर ये अप्रैल की बात है, ये अगर जून तक ये सर ऐसा रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी सर। और हम बात कर रहे हैं उस समय कि हम मतलब राउंड रेस किया हुआ है, तो हम कि हमारी अगली 1000 करोड़ पे रेस कर रहे हैं, ये चल रही है, और सडनली बात कर रहे हैं कि जीरो हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके। दूसरा बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह सारा बंद, बाकी सारे एवरीथिंग वाज। तो मैंने सारी अपनी पहले तो अपने CFO से बात करी। मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताओ कि हमारे पास जितने एसेट्स हैं और जितनी हमारी लायबिलिटी है, राइट, वो क्या हाल है, पहले ये बताओ मुझे। ठीक है। तो आई रियलाइज्ड कि जो हमारा डेट था, काफ़ी बड़ा डेट था, करोड़ों में डेट, तो और हमारी जो एसेट पोजीशन थी दैट वाज बैलेंसिंग। हाँ, मैंने कहा ले अब तो ठीक है, अब तो खाना तो मैं बना सकता। See, I don't want to be in a situation कि मतलब कि मुझे जो देना है उस पे वो नहीं होना चाहिए। तो once that was done, तो एक रात की नींद मेरी उड़ी थी, एक रात की नींद उड़ी थी। अगले दिन मैं टीवी पे देख रहा था, वैसे टीवी देखने का टाइम नहीं होता था, कुछ न्यूज़ चैनल चल रहा था, कुछ ऐसे हॉस्पिटल का कुछ इंटरव्यू चल रहा था। वो हॉस्पिटल जो था, कहीं मुंबई में इतना बड़ा हॉस्पिटल मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये हो गया, सब बंद हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या। वैसे दिमाग में आया, मैंने कहा ये जो हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई वाले, इनको खाना कौन दे रहा है? तो इनको खाना मिलना चाहिए कैसे भी। तो पुनीत चटवाल मेरे दोस्त, होटल्स भी ज़ीरो बंद, करेक्ट, सब बंद था, सब कुछ बंद था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है, मैं सोच रहा हूँ ये हॉस्पिटल है, इसमें खाना देना चाहिए हमें। कहता कैसे? मैंने कहा मेरे पास टीम है, आपके पास टीम है, और मैंने कहा क्या खर्चा आएगा? तो मैंने कहा 50-50 करते हैं, 50 आप लोग दो और 50 मैं देता हूँ। He said, let me call you back। 5-7 मिनट में फ़ोन आ गया, कहता है यार आइडिया तो अच्छा, पर करेंगे कैसे? मैंने कहा फ्लाइट भी बंद हैं, फ्लाइट किचन है तुम्हारे पास में, वहाँ पे कर सकते हैं, मैं अपने भेजता हूँ शेफ्स। तो कहते हैं हॉस्पिटल में, मैं कहा लीव दैट टू मी। तो मैं कहीं उसी समय, क्योंकि कोविड के चक्कर में चल रहा था ये, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, तो ICMR के एक डॉक्टर मुझे मिले थे, डेप्यूटी डायरेक्टर, ऐसे ऐसे। तो मेरे पास नंबर था, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो कहते हैं आई नो, आई एम फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, आई नो, तो डीन को मैं जानती हूँ, तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो मैं कनेक्ट करा देती हूँ। मैं कहा जी ठीक है, करा दो। तो हमने करके शेफ वगैरह हमने करे, कुछ डंडे वंडे उनको रस्ते में पड़े, पुलिस ने मारा, ये किया वो किया, व्हाटएवर, बट वी कुड, हमने वो हॉस्पिटल में खाना देना शुरू कर दिया, 200-250। अच्छा, हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल, मैं तो वहाँ दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए। पता किया, करते करते हमने कुछ ऑल ओवर इंडिया 40-45 हॉस्पिटल्स में खाना देना शुरू कर दिया, ऑल ओवर इंडिया, इन द नेक्स्ट मंथ और सो मे बी। हाँ, इन दैट टाइम, एंड सडनली लाइक मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं, ये करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पायनियर जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज है, सो इट्स अ ग्लोबल ऑनर। मतलब हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे, मतलब पद्मश्री मिला, थोड़ा लगा अरे वाह, कोई शेफ को नहीं मिला, आप पद्मश्री आप मिल रहा है, दैट वाज वेरी नाइस। बट दिस वाज समथिंग, इट इज ऑन योर ह्यूमैनिटेरियन वर्क दैट यू डू, सो व्हेन दैट इज रिकग्नाइज्ड यू फील गुड कि हाँ चलो ये अच्छा है। And of course, it brings the inner peace, but I think you're also given the fact that it's being recognized. तो हाँ, एक्चुअली मैं पहले ना काफ़ी साल तक बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे मेंटोर, वी लॉस्ट हिम इन कोविड, वो उन्होंने एक बार मुझे बोला, अरे तुम US में थे? मैंने कहा हाँ सर। कहते तुम कुछ अक्षय पात्र? मैंने कहा हाँ सर, मैं करीब 20 दिन के लिए इतने इवेंट्स यहाँ मैंने कहा सर मैं तो 7-8 साल से कर रहा हूँ। तुम्हें कोई बताया नहीं? मुझे भी नहीं बताया। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अच्छा है, ऐसे क्या है, मैं कर रहा हूँ, तो आई डू माई बेस्ट।
तो he shouted, he says, no, this is wrong, you have to tell. मैंने कहा सर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कर रहा हूँ ऐसे ऐसे. He said नहीं, it is नहीं, it will inspire others. And that is very true, sir. हाँ, so then मतलब it took me some time to talk about it. Yeah. But I think it matters because it does inspire. Because if it, like you're saying, if it gets 2 more people to do it, yes, correct. That's actually going to 20 lakh more people, right? हाँ, so, but given आप कह रहे हो कि सक्सेस, मुझे लगता है कि you have seen success or what most people can dream of as success 2 decades ago, right? So मैं तो आज भी स्ट्रगलर हूँ. नहीं, but फिर भी what keeps you going? I just wake up with enthusiasm. Babe di full kirpa. That's what I feel. And I genuinely believe that each day would be better than yesterday. कल जाने वाले कल से आने वाला कल बेहतर होगा, और वो होता है. And that's what I have. Manifestation. हाँ, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ. So I have always believed that. तो मेरे लिए तो ज़िंदगी ऐसी है कि और अगर कभी ऐसा जो दूसरों को लगता है कि अरे ऐसा ऐसा, then you accept. Then you accept कि ये भी ठीक. मेरे को लगता है हर एक प्रोफेशन के साथ कुछ ना हैज़र्ड्स भी आते हैं. करेक्ट. राइट. ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड जो होते हैं, जैसे हम जब अब किसी के को मिलते हैं या चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे पहले दिखता है कि यार लाइनें कितनी प्रॉब्लम है. हाँ, सही बात है. ठीक है. तो आप भी खाना देख के ऐसे ही जज करते हो? नहीं, वो मैं जज करता हूँ इफ आई एम पेड टू डू सो. अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं जज नहीं करता. लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली उस बात का थोड़ा सा फायदा उठाया. द टीम हैज क्रिएटेड अ फ्यू डिशेस for you. Some of these are your own recipes. In fact, you remember the paper cutting that we saw, 99 wala? The first recipe is actually the recipe on that newspaper that you had given, which is for a broccoli soup. Okay. So we have this here for you. I'd love for you to try it out. But वो तो सब ठीक है. ब्रोकली सूप कहाँ पे है? Shit. अच्छा, आ रहा होगा, कोई आ जाए. नहीं बता दो उसको. I told her to prank you. सॉरी, इन्होंने बोला मुझे ऐसा किया. But please, sir, let me. Oh. Please do try this. Okay. That's the. At least it's hot. नहीं, hot है. नहीं, खुशबू तो ब्रोकली की है. बट वो That's high praise? नहीं. मतलब आप हंस क्यों रहे हो ऐसे? मेरे को लगा कि नहीं, मैं ये तो कह रहे ये है ब्रोकली सूप भी है, बस इसे मेरा ना कहिएगा. नहीं, वो ऐसा नहीं है. नहीं, वो जिसने सूप बनाया है वो तो ठीक ही बनाया है. हाँ. जिस समय मैंने बनाया था मुझे बनाना नहीं आता था. तो मैं उस संजीव कपूर को बोलूँगा कि थोड़ा सा ब्रोकली सूप ब्रोकली जैसा बनाओ पूरा. नो, दिस इज वेरी गुड. देखो एक मेरा मानना है, खाने सब अच्छे होते हैं. लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, खाने सिर्फ अच्छे होते हैं. तो लोग खाने में क्या वो है. अब जिसको खाने की समझ नहीं है तो वही कहेगा ना खराब नहीं. बट खाना जो बनाता है ना, इतनी मेहनत से खाना बनता है. देयर इज सो मच एफर्ट दैट गोज. और घरों में अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ कि बोल देते हैं अरे कितनी आसानी से, इसमें ये कम था ये कम था. अरे खुद बना के देखो कितनी मेहनत लगती है. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट्स. सो इन लाइफ खाने को छोड़ दो, ज़िंदगी में ये देखो कि अच्छा क्या है.
हर चीज़ में मुझे आप मैं कहता हूँ कि जला हुआ टोस्ट भी दो, मैं उसको सेलिब्रेट कर दूंगा। मैं बताऊंगा कि इसमें अच्छा क्या है। कहते वो कैसे करोगे? मैं कहा अब देख के तो देखो, मैं बताता हूँ कि कैसे है। उसमें बताऊंगा कि देखो द स्मोकी नोट्स इन दिस टोस्ट आर सो गुड, द क्रंच इज सो गुड कि जला हुआ टोस्ट में लगा अरे ये खाने का दिल कर रहा है अभी मैं, राइट। और कुछ नाजिक क्रंच तो है, राइट। नहीं स्मोकी नोट्स भी आएंगे, देखो उसके अंदर सब कुछ आएगा। सो एक्चुअली खाने में बहुत आसान है ये कहना कि ये ठीक नहीं है वो नहीं। और खासतौर पर घरों में ना आई हैव सीन कि कोई एक खाना बना रहे होते हैं, कोई भी है चाहे, और बाकी सारे लोग हैं ना वो उसमें बता रहे हैं कि क्या गलत है, कितना दिल पे बीतती होगी। सो इट्स ऑलवेज मैंने बहुत लगते लेट आई आज उस चक्कर में, क्या सूप बना रही थी। नहीं पाव भाजी नहीं अभी तो ये देखो अभी चल रहा है ये तो अभी। इसमें सिर्फ ये ब्रोकली का सूप नहीं था, ब्रोकली एंड पाइन नट का सूप था जो, करेक्ट राइट। तो ये वो सूप था, बट वेरी नाइस हॉट। थोड़ा सा पेपर जो है वो पेपर तो ठीक है, उसके हिसाब से सूप कम है। पेपर ठीक है। ये तो बोलते हैं मास्टर शेफ वाली जजिंग। नहीं अच्छा है, दिल्ली में आके गला खुल गया। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। अच्छा अब ये पाव भाजी, ये तो देखो बाजार से लिया, पाव बाजार का है, पाव नंबर बाजार का है। हाँ नहीं नंबर कट के नहीं, वो वैसे भी दिल्ली में मिलता नहीं है पाव वो वाला। The only पाव I like with पाव भाजी is the वो जो बॉम्बे वाला होता है ना, तो यहाँ मिलते नहीं है, जो लादी पाव बोलते हैं, लादी पाव, ये यहाँ पे मिलता ही नहीं है। वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। There's only one place in Gurgaon which makes it, और which makes it well, I would say। बनाते 2-4 लोग हैं, बढ़िया, सिर्फ एक वही बनाते हैं, तो मैं घर पे हमेशा उनसे ही मंगवाता हूँ। Oh my God, क्या मक्खन डाला है इसके अंदर पाव भाजी के अंदर। पहले वो सिर्फ मक्खन और मक्खन ही है, बहुत पूरा मक्खन लगाया गया मुझ पे। That's the least we could do। हाँ नहीं बिल्कुल, पर बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत बढ़िया है। इसमें जो पाव भाजी मसाला इस्तेमाल हुआ है, नेचुरली उस समय जो मैंने बनाया होगा उस समय एक पाव भाजी मसाला इस्तेमाल किया होगा, उस समय वो इंडोर्स कर रहा हूँ, तो उतना फर्क तो होगा ही होगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन सा वाला तेल इस्तेमाल करें, कौन सा वाला इस्तेमाल करें, उनका बेस्ट वाला इस्तेमाल करें। सर बेस्ट कौन सा होता है? मैंने जिसमें मेरी फोटो लगी होती है, और कौन सा? उस टाइम मेरी फोटो जिसमें लगी है। कहने की बात ही नहीं है, कहने की। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। There's another one of the dishes that और भी है? हाँ, there's two more. Yes. Okay. There's one of the dishes जो आपकी एक्चुअली बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, शाम सवेरा। अरे वाह, ये पता नहीं 5000 रेस्टोरेंट्स में तो होगी जो हमारे नहीं है, जहाँ पे शाम सवेरा मिलता है। कल मुझे कनाडा से मेरे भतीजे ने मुझे एक कोई रील किसी की भेजी, किसी और रेस्टोरेंट का कुछ चल रहा है, उसमें संजीव कपूर का शाम सवेरा। संजीव कपूर को यहाँ संजीव कपूर के लिए संजीव कपूर का शाम सवेरा। नहीं सर, ये मतलब ये किसने बनाया है? नहीं पर पहले मैं बता दूं, जिसने भी बनाया भाई, जिसने बनाया बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर बनाने में। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है और बनाना आसान नहीं है ये। तो वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है जिसने भी बनाया। और ये मटर का पुलाव भी इसके साथ में ही था हमारे साथ ही। ये भी एक ही डिश है, एक ही डिश है। अच्छा इसके बाद में 2 और है, एक और है, फिर ठीक है। We tried to do the 4-course meal for you. We started with the soup. We graduated to pav bhaji. This is the main entree. क्या बात है। And we'll finish with the dessert. ओहो हो, मतलब ये सही है। मैं ना सुबह घर में से इसलिए नहीं खा के निकला था कि कुछ खिलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे बेड़ुई आलू भो रही हैं, तो आप मैं कहा भागो यहाँ से, मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, आप पास हो गए। हाँ वेरी गुड। चलो इसमें ना सब्जी ज्यादा है ना पुलाव। ऐसा नहीं है, एक जोक बार बार नहीं सुनाया जाता। करेक्ट, सच बोला जा सकता है। बोल दूं? देखो इसने नहीं बोला था, सिर्फ उसका बोला था कि उसके साथ करना, बाकी को नहीं बोला था, तो इसलिए। वाह, दिल्ली की सर्दी, क्या बात है।
तो गजरेला। गजरेला, हाँ ओहो, इतना लंबा कट लिया था। अच्छा गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव तो देखा था मैंने। हाँ। बढ़िया। नाइस, वेरी नाइस। वो एक्चुअली इसको थोड़ा सा वो देना है। मेरी छोटी बेटी लंदन में रहती है, वो भी आई है। हाँ तो उसने मुझे पूछा था, अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं हाँ। तो आपने मेन्यूज़ बनाए होंगे, गाजर हलवा तो मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो कल रात को एक फंक्शन था, हाँ तो खाना खाने के बीच में मेरे पास आ गई हाँ। ऐसे, यू नीड टू अपोलोजाइज टू मी। मैंने अब क्या कर दिया? नो नो, यू नीड टू अपोलोजाइज। क्या हो गया? दिस इज नो गाजर हलवा। मैं मूंग दाल हलवा है, वो खा ले। नो नो, यू सेड गाजर हलवा होगा। मैंने कहा था मैं अब शादी में होगा, ऐसे नहीं बोलते आज ही अभी होगा। पैक करा रहा हूँ ये। हाँ, तो इसलिए अभी लंच में उसको खिला के देखो, मैंने गाजर हलवा खिला दिया। आई विल टेक अ क्यू फ्रॉम दिस। हाँ जी। अब आप दिल्ली आए हैं, हाँ तो आई एम श्योर कि मेरे को पहले यही लगा था कि मतलब अब 2 पंजाबी बैठे हैं, उनमें से एक पद्मश्री शेफ संजीव कपूर, तो खाने की बात ना हो, ये तो गुस्ताखी होगी, राइट? सो व्हाट इज सोल फूड फॉर यू? बिकॉज मेरा पर्सनली जो है ना, खाने से बड़ा इमोशनल रिश्ता है। व्हेनेवर आई एम डाउन, आई नीड अ पिक मी अप, यू नो। फॉर मी ऑफ कोर्स ऑलवेज दैट कम्स डाउन टू समथिंग एट 2 AM, एंड मेरे घर में इट विल मोस्टली रिजॉर्ट टू मैगी, राइट? तो बट व्हाट्स सोल फूड फॉर यू? मतलब ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अरे मुझे अभी यही खाने, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ खाता हूँ, बट नेचुरली थिंग्स दैट यू ग्रोन अप विद, राइट? तो वो आपको अच्छी लगती हैं। ऑल्सो कि मतलब अभी ये सर्दियों का सीज़न, तो गाजर हलवा वाह 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 मज़ा आ जाएगा, राइट? मक्की की रोटी सर्दियों का सीज़न में है, ऊंधियो सीज़न है ये, तो सीजनल चीज़ें पिक मी अप होती हैं। बट अदर देन दैट आई ईट एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता। आलू बेड भी बोला कि भाग के आया हूँ, लेकिन खाता वो भी अच्छी तो लगती है। बट पिछली बार पिछले महीने दिल्ली आया था 1-2 बारी, तो यहाँ के छोले भटूरे के लिए रुक गया था मैं। कहाँ? नहीं, ये तो जो था मैं बंगाली मार्केट में था। हाँ, गोल मार्केट जो है, नहीं बंगाली सीपी वाली बंगाली मार्केट, बंगाली मार्केट में था। बंगाली मार्केट में आई थिंक नत्थू कौन से हैं, दो नत्थू है और बंगाली स्वीट्स। तो बंगाली स्वीट्स में अब वो भी 2 सेपरेट हो गए, करेक्ट। तो उसमें से अगली जनरेशन में लड़ाई होती होगी। हाँ, तो वहाँ पे अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बट इफ यू हैव टू पिक अ प्लेस फॉर छोला भटूरा और अ कपल इन दिल्ली, सो एक पहले होता था सदर बाजार में एक देयर यूज्ड टू बी प्लेस, बहुत टाइम से गया नहीं, बट अदरवाइज ये बंगाली स्वीट्स वाला अच्छा था। अच्छा, एंड फॉर बटर चिकन? बटर चिकन तो एक्चुअली मैं कोई रेस्टोरेंट्स में जाता नहीं हूँ। हाँ, दिल्ली वगैरह हो या ऐसा कहीं कहीं कभी मैंने ऐसे बटर चिकन खाया ही नहीं है। तो मुझे बोलोगे, मतलब हम जब मैं नौकरी करता था तो फ्रंटियर में बेस्ट होता था। मुझे येलो चिली लगा बोलोगे आप? हाँ, नहीं वो येलो चिली तो देखो अब अपनी बोलोगे तो वो तो है ही है बेस्ट, वो तो है ही है। बट अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये कहाँ जाके, और बहुत कम रेस्टोरेंट में ऐसे जा पाते हो आप ऐसे, मतलब क्राउडेड, वो तो दैट इज यू साइंड अप फॉर दैट, राइट? तो उसमें क्या है, वो तो अच्छा है, वो हो रहा है, नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ट्रू। ठीक है, बट मेरे को ना आजकल पता नहीं, मेरे फेजेस आते हैं। आजकल मेरा फेज चल रहा है कचौड़ी का। हाँ, तो कचौड़ी का तो हमेशा फेज होता है, और आना जाना थोड़ी होता है। कचौड़ी अभी हम जोधपुर जैसलमेर थे, तो वहाँ से प्याज की कचौड़ी, करेक्ट। फिर वहाँ पे एक छोटी सी इतनी सी हींग की कचौड़ी भी थी, बहुत ही बढ़िया। पर हींग की कचौड़ी इंदौर में जब हमने खाई तो हमारे चल रहा था, सो वही कृति मेरे डॉक्टर कहती, आपने ना कचौड़ी का हमारा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, वो जो है ना इंदौर वाली, वही दैट इज माय बेंचमार्क। यस, वो तो है। मैंने कहा ये प्याज वाली है, डिफरेंट है, ये अलग है, बट या कचौड़ी तो दिल्ली में कहाँ पे अच्छी है पता नहीं पता।
पता दे तो बता दे। नहीं, मुझे एक दो जो अच्छी लगता है मुझे वो पता है। हाँ, कौन सी कचौड़ी है? एक रूपनगर में शर्मा जी कचौड़ी वाले हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता रूपनगर कहाँ है, तो वहाँ कमला नगर के पास। अच्छा, that कमला area, नगर, ओके, right? So रूप गली पता है। हाँ, तो खोली नंबर 420 रूपनगर रूपनगर प्रेम गली खोली हाँ, नंबर 420। हाँ, बट आई डू वांट फॉर माय ओन क्रेविंग, हाँ, इफ यू हैव टू गिव अ रेसिपी फॉर मैगी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो तो व्हाट इज द संजीव should कपूर you मैगी should रेसिपी, not make। वो मेरे को पता है। तो बस, तो फिर मेरे से पूछोगे तो मैं तो सच ही बोलूँगा। मैदा, हाँ फ्राइड, हाँ, पैकेट में फ्राई होके पैक किया जाता है, कितनों को पता है ये? तो इसलिए नहीं। बट इफ अ लेट नाइट स्नैक देन व्हाट? पहली बात तो कि लेट नाइट स्नैकिंग इज नॉट गुड, हाँ, तो अवॉइड इट। व्हाई? इवनिंग स्नैक। हाँ, इवनिंग स्नैक बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस्ट इज फ्रूट, हाँ, बेस्ट इज फ्रूट, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद सीज़न की जो चीज़ें हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग ना ये जो स्नैकिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सो नट्स वगैरह ले लो, नट्स, ड्राइड फ्रूट्स ले लो, बिकॉज ये तली हुई चीज़ें, मीठी, मसाले वाली, ज़्यादा नमक वाली, सो ऑन एन एवरेज इंडियन ईट्स मोर सॉल्ट एंड शुगर, ट्वाइस एज मच एट लीस्ट देन व्हाट, तो आधा कम करना पड़ेगा, नमक भी इतना ज़्यादा। वो स्नैक्स आर अ बिग कल्प्रिट देयर, एंड कार्ब्स तो फिर खैर बात ही मत करो, तो फिर वो छोड़ दो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मत खाओ ना, क्या है, तो भुने चने खा लो, हाँ, वेरी गुड, मखाने खा लो, बट उसमें भी एकदम जो नमक वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ना, अवॉइड दैट। घर में बना लो, घर में बनाओ। Are we slowly decoding your secret to be so, fit and trim and? नहीं, फिट तो नहीं हूँ मैं, बट होने की कोशिश कर सकता हूँ। I haven't, मैं भी अब 40 साल का हो गया, तो मैं कह सकता हूँ पिछले 30 साल में जो था मैं आपको देख रहा हूँ, I don't see a different person. You look as great as what you were looking in that paper. Maybe I was not great back then. No, you still are. You have been. So there has to be something that goes into it. No, of course. You have to be more responsible. You have to be more responsible. और कोशिश करता हूँ, बट आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई हैव अ लॉन्ग वे टू मेक माई हैबिट्स बेटर, खाने की भी और एक्सरसाइज की भी, स्लीप की भी. ये तीनों बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक आई लैक इन ऑल थ्री. सो आई कैन बी, और ये मुझे मेरी कमी पता है. सी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कमी पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट. यू कैन वर्क ऑन इट. ठीक है, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. बट बिकॉज देखो हमारा कारोबार जो है वो एंटी एजिंग, स्किन, हेयर, व्हाट इज इट एज अ प्रिपरेशन? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कच्चा खाना काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. So if you had to kind of guide us on a couple of preparations, 1, 2, whatever you feel like, which are good for skin, hair, keep you young, fresh, what would those preparations be? मैं अपने लिए देखो कुंजी भी लेके आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें खाने के लिए स्किन के लिए अच्छी हैं, बट हाँ, जितना तो खाने के अंदर एक्चुअली रूल बड़े सिंपल हैं. ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये ना, ये बहुत गलत फहमी लोगों की होती है कि ये इसके लिए अच्छा है, ये आइदर वो अच्छा है या नहीं है. सो ऐसा नहीं होगा कि कभी इन आइसोलेशन नहीं होता. वेरी ट्रू. सो दिस इज इट्स वन फुल बॉडी. देयर इज नथिंग कि ये पार्टली उसके लिए होगा, बट ओवरऑल प्रिंसिपल सीखने चाहिए. ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है? ईट समथिंग दैट इज फ्रेश, ईट समथिंग दैट इज इन सीजन, ईट समथिंग दैट इज लोकल. सीजनल, लोकल, फ्रेश, ये फर्स्ट रूल. सेकंड, ईट इन मॉडरेशन. सीजनल, लोकल, फ्रेश, इन मॉडरेशन, यू विल नेवर गो रॉन्ग. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर सराउंड दैट विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप. स्किन, सब कुछ अच्छा होगा, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा. बिकॉज अगर आपको कि ओहो ये जो है ना, इसके अंदर ये वाले फैटी एसिड्स
बड़े अच्छे होते हैं, ये अच्छे होते हैं, ऑफ कोर्स अच्छे होते हैं. जितने भी हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स. प्रोपोर्शंस ऊपर नीचे होते हैं. एंड अगर आपको मतलब ज़्यादा आपने फैट कर लिए तो पूरा नुकसान भी करेगा, कम हो गए तो भी नुकसान करेगा. करेक्ट. दोनों तरफ से नुकसान करेगा. सो दैट्स वाई मॉडरेशन इज़ द की. राइट. मॉडरेशन इज़ द की. और ये नहीं कह रहा कि जिम में जाने की ज़रूरत है. एक फ्लोर तक जा रहे हो तो देख लो, सीढ़ी चढ़ लो, 2 फ्लोर तक चढ़ लो. नहीं, हम तो 15th फ्लोर पे रहते हैं. तो 3rd फ्लोर से लिफ्ट ले लेना. वहाँ पे भी वही जाती है. ये जरूरी बहाना थोड़ी है कि ग्राउंड से ही लेनी थी, 3rd से ले लेना. Correct. या 12वें पे उतर जाना, 15वें पे चलना. Right. So you have to make that. Yeah. You have to make that your lifestyle. And then it becomes easy. और फिर कोई मुश्किल नहीं है. You said seasonal, local, fresh. Correct. दिल्ली की सर्दी में अगर कोई एक चीज़, बिकॉज आई वॉन्ट कि एक कोई हम वो रखें तो. मैंने तो आपको बताया मक्की की रोटी सरसों का साग. वाह. यस यस मैं यस. खाऊंगा. मैं अपनी रेसिपी लेके आया हूँ, पता मैं इसलिए बार बार रेसिपी पूछ रहा हूँ, बट हमारी रेसिपी इज दिस. Okay. So we have recently made this, launched this. Hydration you feel, protection you trust, sun soaked. Yes, it's Okay. it's a moisturizing sunscreen. Sure. It is for lazy people like me. हाँ. It's a skin routine in a bottle. हाँ. तो the idea is moisturization, hydration दोनों एक ही बॉटल के अंदर है. हाँ. सुबह मुंह धोया, ये लगाया, काम पे चले. हाँ. That's how lazy I am. Okay. Right? So तो ये इट्स नाइस, फील इज़ गुड. ये मुझे बताओ कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है? okay, so with everything that we do, the main thing is build great products. What is absolute best for That you're Indian talking skin? product. Yeah. No, I'm saying overall market. Basically, everybody who is, let's say, 25 and above, मेल फीमेल irrespective, इसमें फर्क नहीं पड़ता. And even हमारे broader services में भी फर्क नहीं पड़ता. बट नहीं, वैसे क्या है डेटा, क्या कहता है? Data is, let's say, 60% women, 40% men. Okay. And 25 to 45 is the prime segment. And the view to services or products is build absolutely great services, build absolutely great products, give it at a price which is unbeatable. Right. So nothing, you Great said, value. right? So completely science driven. हाँ. Top of the line products. Some of these ingredients we had to wait 3 months to kind of get into the country. Because sort of international, sunscreens, etc. We took one of the best sunscreens in the world called Lisden. And we said, उसके लिए इंडिया के लिए क्या चाहिए? It needed a little bit more moisturization. हाँ. So we built all of that together. जो वो 5,000 की चीज़ है, हम इसको 1,500 में देते हैं. Right? So that's the kind of approach, whether it's to services or it is to products, कि जो भी बनाएंगे उससे better नहीं मिलेगा, and that would be available to you at a price that will say कि ये कैसे हो रहा है. Right? And I think that's been the approach to this. Nice. Good. This looks good. Feels good. But I'll still not eat it. How do you take care? You said कि जो लगाएंगे नहीं. What has been your routine of how do you take care of yourself beyond, of course, eating right and exercising and कुछ नहीं. लठ मार अप्रोच है. कुछ नहीं है. But clearly it works. I don't know whether it works or It not. does. It does. Nothing. It shows that it works. हाँ, मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला यूज़ करता हूँ, ऐसे यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, कुछ नहीं है ऐसा. पहले तो बहुत साल तक तो पता ही नहीं था. क्वाइट ऑनेस्टली. जब कुछ साल तक खाना खजाना जब किया तो किसी ने बोला कि आप फेशियल करा लो. फेशियल हम थोड़ी करते हैं. तो जब पहली बारी फेशियल कराने के लिए गया तो आई फेल्ट सफोकेटेड. कि मेरे को सांस नहीं आया. क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया. कब किया नहीं ना. तो ऐसे मुंह पे अगर आप ऐसे हल्का तौलिया भी रख दो तो हाँ शीट लगा दो तो मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ में. राइट. तो सो आई एम फ्रॉम देयर नाउ.
कोई डॉक्टर मिल गए थे मुझे, तो वो उनको गुस्सा आ गया, उनके साथ वाले ने बोल दिया कि अच्छा तो आप आई डॉक्टर हैं, रेटिना और ऐसा कुछ स्पेशलिस्ट, ऐसे वैसे वैसे। अच्छा मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा बेचारा गरीब आदमी से पूछ लिया, आँख आप वो है, आपने उसको तो ऐसे झाड़ दिया उसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा तो मस्ती करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने बड़ा सीरियसली उनको पूछा, मैंने कहा अच्छा डॉक्टर विच आई, लेफ्ट या राइट? मैं तुम इतने स्पेशलिस्ट हो तो ये भी नहीं पता तुम्हें कौन सी आँख के हो? बोले माँ की आँख। ओके, व्हाट इज द वन वेलनेस हैबिट ओवरऑल जिसमें आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? सोचा ही नहीं कभी। बड़ा संजीदा सा सवाल है कि आई थिंक एक ही चीज़ है, हर रोज़ एंथुजियाज्म के साथ उठता। दैट इज़ वन वेलनेस। दैट्स वन थिंग पीपल डोंट रियलाइज। वी फील दैट वेलनेस इज प्योरली बॉडी। हाँ, it's more equal, mind. yeah, Not equal, it's more. Exactly, right? So मतलब माइंड पे ध्यान दोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। तो मैं ये नहीं करेंगे मेडिटेशन ये वो मेरे बस की नहीं है, बट ये मैं कि कभी मैं ऐसे नहीं, दिन में ऐसे कभी नहीं आप मुझे मिलोगे नहीं और बोलोगे क्या है बड़ा हाल ख़राब है, कहाँ है, दिल्ली आ गया, कितना ट्रैफिक है, पॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं कहता। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। So that's one thing. See the good in everything. Everything. Yeah. Like the soup. Like the soup. Look good. Soup was actually good. Soup तो मैंने बताया ठीक है। दिक्कत सूप की नहीं थी। नहीं, दिक्कत पेपर की नहीं थी। ओहो, ठीक है। तो ओके, वी आर नाउ लॉन्चिंग इनटू आवर लास्ट सेगमेंट प्रीटी मच, और ये मेरा के जो मोमेंट होता है, तो विल डू अ क्विक रैपिड फायर इफ यू डोंट माइंड। हाँ नहीं वो तो ठीक है, हैम्पर नहीं दिख रहा। हैम्पर भी है। अच्छा इसलिए साइज पूछ रहे थे। ओह तो पैंट का ही बता देते हैं। चलो मजाक कर। ओके, ओह दिस इज एक्चुअली अ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। हाँ, हाउ मच स्वाद इज एक्चुअली स्वाद अनुसार? Oh, that is a brilliant question. So करीब 338.5 किलो। जैसे वो 1000 किलो खिचड़ी में। नहीं बस बता दिया अब इतना है। सवाल पूछा जवाब ये है। आपने बोला आप बाहर जाके नहीं खा पाते। डू यू एवर ऑर्डर इन? मैं फूड पांडा अपने दिनों से Very rare, बहुत रेयर है। जब घर पे ही किचन है, घर पे आपकी चलती है वैसे इतनी? हाँ बिल्कुल चलती है। अरे क्या बात कर रहे सर, ये सीखना है मेरे को, बाकी सब छोड़ो साइड में। किचन के बोल रहे ना। किचन के बोलने में क्या है। ओके, हु गेट्स मोर और व्हाट गेट्स मोर कॉम्प्लीमेंट्स ऑन देयर लुक्स, यू और योर फूड? माय वाइफ। वेल ट्रेन्ड। इसका इनमें से और कोई सही जवाब नहीं था। इफ यू आर नॉट अ शेफ एंड वी गोइंग बैक 30 years, इफ यू आर नॉट अ शेफ, उस दिन वो एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बैठे होते होटल मैनेजमेंट में, बाहर निकल गए होते किचन से, क्या होता है? नहीं उससे पहले फिर होटल मैनेजमेंट नहीं करता ना, उससे पहले नहीं करता तो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट, वंडरफुल। आपको यू लव दैट पार्ट ऑफ इट? अभी भी आई स्टिल लव, अभी भी अच्छा लगता है। पहले भी था, मतलब लगता था पहले था ही ऐसे कि शायद ही बनूंगा भी आर्किटेक्ट, सोचा भी वही था। Which would have helped in all the restaurants and like everything. my dad many years later he says कि तुम खाने के आर्किटेक्ट हो गए ना, फूड आर्किटेक्ट हो गए। बिल्कुल सही। Very true. Very true. Okay, what is one kitchen disaster that you've never confessed before? ऐसा जो नहीं होगा कि मैंने कभी को बताया नहीं होगा तो मुझे याद ही नहीं होगा। तो बता ही होगा, बट आई कैन कुक इट अप, उसमें क्या है। ये तो काम है हमारा। मैं तो काम है, मैं तो आई कैन कुक बहुत सारी खाने बना ले। उसमें क्या है वो तो बट सच ऐसे डिजास्टर तो बहुत सारे होते हैं, पर ऐसे में होता है ना कि मज़ेदार कौन सा है ना। हाँ मज़ेदार वाला बताया होगा ना, चक्कर ही है। कोई बात नहीं। हाँ तो बताया होगा, मतलब
न्यूजीलैंड में काम कर रहा था रेस्टोरेंट के अंदर, और रात को सफाई वाई करते ही थे। तो मेरे को एक दिन तंदूर के ऊपर की हुड जो थी वो ऐसे गंदी सी लग रही थी। तो मैंने अपने कुक्स को झाड़ा, मैंने कहा क्या है देखते नहीं साफ करता, लाओ मैं करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो मैं चढ़ा ऊपर साफ कर रहा, पैर स्लिप को तंदूर के अंदर। मुझे भी नहीं पता कैसे मैं इमीडिएटली वापस आया। फॉर्चुनेटली वो तो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट था, तो उस वक्त एकदम ऐसे वो नहीं था, पर तंदूर ऐसा नहीं होता कभी बंद नहीं होता है, वो फिर भी जलता रहता, गर्म ही होता है। बट आपको पता है ना, बाय द वे देयर इज साइंस, अगर बहुत हॉट कोई चीज़ है एंड यू क्विकली टच इट एंड टेक इट आउट, वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मैं बहुत करता हूँ। तो भटूरे वाले जब होते हैं तो मैं बहुत अभी भी करता हूँ। लास्ट कोई 10 दिन पुरानी बात है, कहीं तो था, तो मैंने कहा ये तो क्या है, तो हम क्योंकि साइंस पता है एक बेसिक, हाँ राइट। सो बट वुड लव टू नो द साइंस। नहीं, साइंस एक्चुअली खाने की साइंस जो है ना, बहुत ना घरों में बात होती है ना होटल रेस्टोरेंट में। और मैं एक्चुअली जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई लव फॉर साइंस। तो मुझे हमेशा से ही आई बीन एबल टू ब्रेक कि अच्छा इसमें ऐसा 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 होता है। तो जिसमें बताता हूँ कि पूड़ी फूलती है, फुल्का भी फूलता है, रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी फूली हुई नहीं मिलती है, आटा तो सब में वही था, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आलसी लोग हैं, फूलनी चाहिए, फूल जाता है। तंदूरी रोटी भी फूलती है, पूरी फूल सकती है, पूरा अच्छे से गूंदना पड़ेगा, उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा, सारे उसकी साइंस लगानी पड़ेगी। और हर चीज़ के अंदर कि क्या कौन चीज़ में खस्ता कैसे करना है, सॉफ्ट कैसे रखना है, कि मतलब ग्लूटेन है, अच्छा ग्लूटेन मतलब इज़ नॉट ऐसे थोड़ी ओहो ग्लूटेन है तो विलन हो गया, इट्स अ प्रोटीन। करेक्ट, प्रोटीन की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि ग्लूटेन, राइट। सो इट्स हर चीज़ के अंदर आपको साइंस पता होनी चाहिए, गरम ठंडा क्या चीज़ के अंदर है। एंड इट्स कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल, अभी जैसे इसके आपने कहा कि मॉइस्चर और वो हाइड्रेशन, मतलब इट्स बेसिक चीज़ है हर चीज़ के अंदर। खाने के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ मॉइस्चर। वो अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, कोई चीज़ केक में ड्राई और उतनी मॉइस्ट करेक्शन है ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा। चॉकलेट में वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर अ बिग चॉकलेट कंपनी, तो उन्होंने हमें हायर किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें पता नहीं था तब तक कि क्या चॉकलेट के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैं उनके R&D हेड के साथ बैठा, मैंने कहा अच्छा आपकी बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमी इन आपके पूरे प्रोसेस में? इज मॉइस्चर, वाटर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चॉकलेट चाहिए होता है? नहीं मतलब प्रॉब्लम की चॉकलेट बन गई तो उसमें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो हमने जितने सॉल्यूशंस थे सारे हमने हाई मॉइस्चर के साथ में दिए, बिकॉज वो तो उस तरफ जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि तो आप सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो तो यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट रादर देन ट्राइंग टू। हमने सारे जितने थे सब सॉल्यूशंस उसके साथ में दिए। तो बिकॉज वी आर विलिंग टू टेक दैट चांस, तो हमने कहा ये ऐसे कर सकते हैं। तो हर चीज़ के अंदर साइंस के बिना तो तो इसलिए हमारा एक कॉलेज है, हम पढ़ाते हैं कलनरी। तो जब वो शुरू करना था सिम्बायोसिस के साथ में हम करते हैं, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट्स, आई एम दी चेयर प्रोफेसर वहाँ पे, 8वां साल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो जब हम लॉन्च कर रहे थे मैंने कहा नहीं, मुझे ना ये एक बहुत गुस्सा आता है कि शेफ्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं आते हैं। पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, सब अच्छे से पढ़े लिखे आने चाहिए। तो और साइंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर साइंस नहीं पढ़ सकते ना, ऐसे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, शेफ बन गए। मैं कहा नहीं, वैसा नहीं चाहिए मुझे। तो हमने जो कोर्स लॉन्च किया तो मैंने कहा मुझे सिर्फ साइंस के स्टूडेंट चाहिए। कहते सर वो ऐसे कैसे होगा? मैं कहा नहीं, मुझे चाहिए ही सिर्फ वो। मैंने कहा ये ना कहीं डाइल्यूट ना कर दें। तो वी लॉन्च्ड अ कोर्स विच वी डू BSc इन कलनरी आर्ट्स। वाह, मैंने ख़त्म हो गया गाड़ी। करेक्ट। तो वैसे बीटेक ले लो। हाँ बीटेक वही। तो अब हमने अब MBA हम फूड के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं करेक्ट और एक शेफ्स होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी को स्वाद नहीं पता होता, करेक्ट, टेक्नोलॉजी ठीक कर लेते हैं, स्वाद उनको नहीं पता होता। शेफ्स को टेक्नोलॉजी नहीं पता होती। तो मैंने कहा अच्छा, एंड दिस इज वेयर आई मेड मोस्ट मनी। मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली,
शेफ तो मैं था, स्वाद पता था, ये जो कन्वर्जेंस है, तो मैंने कहा अगर मेरे पास में टैलेंट है तो इस ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए. सो वी लॉन्च दैट कोर्स मास्टर्स, हमने उसमें लॉन्च किया. वंडरफुल. वन सेलिब्रिटी हु कुक्स बेटर देन यू एक्सपेक्टेड. नाउ आई नो इट. शंकर महादेवन. ओह, बहुत अच्छा खाना बनाता. अच्छा. वो पैशनेट है खाने में. अगर वो सिंगर नहीं होता तो साथ होता. हाँ. बमन ईरानी ऑल्सो. अच्छा. हाउ वाज दैट? वेफर्स वेरी नाइस. बहुत अच्छे. बड़ा वेफर्स में तो कह सकता हूँ. वंडरफुल. एंड वन सेलेब दैट यू थिंक शुड नेवर एंटर अ किचन. बहुत सारे होंगे, छोड़ना. कोई ब्रोकली सूप बना रहा हो. ऐसे बहुत सारे होंगे, बट दैट्स ओके. हर चीज को सब कुछ थोड़ी आना चाहिए. करेक्ट. वन एनी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड दैट यू. अच्छा, नहीं, एक और चीज़ है. सबको आजकल रेस्टोरेंट खोलने आता है. वेरी ट्रू ना. हालांकि सबको मतलब यहाँ हम रेस्टोरेंट खोलेंगे तो किसी ऐसे ही मुझे कोई क्रिकेटर थे ना, बोला कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ. मैंने कहा वेरी नाइस. मैंने कहा मैं भी अपनी क्रिकेट एकेडमी खोलने वाला हूँ. फिर उनको समझ आया कि बात क्या कर रहे हैं. फिर समझ आया कि बात क्या हो रही है. What's the strangest food combo you actually liked? मतलब surprising. Like I still don't understand pineapple on pizza, but something strange like that you really liked. अच्छा, पाइनएप्पल और पिज्ज़ा में मतलब क्या खराब लगा? पिज्ज़ा या पाइनएप्पल? आइसोलेट करके देख लो ना. तो आइसोलेट करके डालो, ऐसा थोड़ी है. स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन विच आई लाइक. सी आई एम अ एक्सपेरिमेंटल पर्सन. करेक्ट. तो मैं तो वैसे ही रिजेक्ट नहीं करता. हाँ, बट जो मैं तो रिजेक्ट नहीं करता. पसंद ही आ गया. हाँ, पसंद मतलब ऑरेंज फ्लेवर एंट बढ़िया थी. ऑरेंज फ्लेवर एंट. हाँ. हाई इन प्रोटीन. क्रंच भी था, ऑरेंज फ्लेवर भी था. क्या? I don't know if it is too late for this, but dish you would cook to impress somebody on a first date. It's never too late. I know. उम्मीद क्यों करेंगे? पूछ लेंगे ना. हाँ. समझ आ गई तो पूछ लेंगे ना. But देखो, it's always about एक होता है मीटिंग एक्सपेक्टेशन, होता है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, राइट. अगर आपके पास में डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता. आपने मेरे से मेरी शर्ट का साइज पूछा तो मैं भी पूछ लूँगा. तो शेफ्स जो होते हैं वो टेलर जैसे होते हैं. क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या है, तो पूछ लेंगे पहले. अगर इतना ही है, कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी है. मैम के लिए क्या बनाओगे? इफ यू टू डू इट टुडे, पूछ लूँगा. सिंपल लिविंग, नो थिंकिंग. ये मेरा सच बोलो सुखी रहो, ये एक मेरा. मैं अगला ये पूछने लगा था आपका सिग्नेचर डिश, तो मेरे को लगता है अब सिग्नेचर डिश जो बनाएंगे उस पे सिग्नेचर आ गया. वही मेरे को लग ही रहा था. तो ऑटोग्राफ हो गई. कहते तुम्हारा होता होगा सिग्नेचर, हमारा ऑटोग्राफ है. ब्रिलियंट. ओके, दिस सेल्फी हो गई है. ऑटोग्राफ बंद हो गया वैसे. हाँ, लेकिन हमने आज लिया, देखो. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो 99 पे लिया ना. बिल्कुल 99 का चक्कर. ओके, लास्ट दिस और दैट, क्विक पिक्स. ओके, दिस. वो जल्दी करना है तो ऐसे ही करेंगे ना. स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड एनी डे. कुकिंग फॉर फैमिली और कुकिंग फॉर फैमिली? और प्राइम मिनिस्टर्स एंड कुकिंग फॉर फैमिली. अग्रीड. होम कुक्ड और 5 स्टार? होम कुक्ड. मेरे को लगा कहोगे जहाँ पैसे मिल रहे हो. नहीं. स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया और सॉसेस फ्रॉम अब्रॉड? Sauces from abroad तो can wait. They cannot be done without spices from India. And a chef's hat or an entrepreneur's suit? Both can coexist. Economic Times में मेरी एक स्टोरी थी, उसमें ऐसे ही है, जैकेट पहनी है और ऊपर शेफ हैट पहनी है. You converge the two worlds. Yes. Thank you so much. Thank you very much. मैंने बहुत सीखा आज आपसे. सबसे बड़ी बात ये सीखी कि संजीव कपूर जी बिना पैसे के रेसिपी नहीं देते. नहीं. रेसिपी में से गलती नहीं निकालते बिना. ये भी. बट सर, थैंक यू सो मच. रेसिपी फॉर सक्सेस देते हैं, और अगर ये रेसिपी फॉर सक्सेस यहाँ पे नहीं पसंद आई तो हार्वर्ड में केस स्टडी है संजीव कपूर की, एंड इट इज कॉल्ड रेसिपी फॉर सक्सेस.
wonderful ending at that. Thank you so much for your time. Thank you so much Thank you. for Wish you coming all the down. best. Wish you all the Thank you. best. Thank you.